Hello teachers, good morning. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Today we will take up a very good lesson for our teacher training program, that is assessment for English language for classes 3 to 5. Dear teachers, you know well that assessment is a lifelong process. Every learner learns through assessment. If we know or identify our learning gaps, then we can make strategy, we can make some planning, we can make some more useful methods so that we learn day by day. Now the question arises, why should we do assessment for our learners? You will see through this slide that we do assessment for finding out our learning changes and progress in the child over a period of time in different subjects, and we identify individual and special needs and requirements. We also create learning situations, and teaching learning process is also developed through assessment, and we can find out to what extent our curricular expectations and syllabi subject objectives have been achieved. It also improves teaching learning process in the classroom and provide evidence of children's progress so as to communicate the same to parents amongst others. Dear teachers, we know that all parents want to see their children progress in English language. They want to see their children listening English well, writing, speaking, reading. So they want that their children, their words should progress in learning English language. And this assessment is also done to do away with the fear of assessment. Examination में या टेस्ट करने में बच्चे डर जाते हैं, तो असेसमेंट लर्निंग के सहारे चले तो उससे बच्चे सीखते रहते हैं. और and this assessment also supports and improve every child's learning and development, and it also encourages a feeling of confidence and accomplished among the children. अब assessment और evaluation में अंतर है. मूल्यांकन evaluation को बोलते हैं और assessment आकलन होता है. आपने सुना होगा evaluation किसको बोलते हैं? मूल्यांकन. और assessment किसको बोलते हैं? आकलन. और असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस है, यानी कि अंकों के आधार पर मूल्य निर्धारित किए जाए तो वो मूल्यांकन है, और असेसमेंट आकलन में ये एक प्रोसेस है थ्रू विच कंपैरिजन अमंग वेरियस सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड. इट इज नॉट ए फाइनल जजमेंट. असेसमेंट में हम एक बच्चे को अचीवमेंट को दूसरे बच्चे के अचीवमेंट से कंपेयर नहीं करते. असेसमेंट में तो ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, जो बच्चे में लर्निंग गैप्स थे वो कितने फुलफिल हुए हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं. जबकि मूल्यांकन में ये पाया जाता है कि बच्चों ने पढ़ने के बाद, सीखने के बाद कितना अचीव किया है, उसको अंकों से निर्धारण हम करते हैं. तो असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्हाइल इवैल्यूएशन इज जस्ट टू गिव मार्क्स और ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स. अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जो कि ये बताएगी कि बच्चों में लर्निंग गैप्स किस तरह के हैं, और वो एक्टिविटी है हमारे लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम टीचर मैनुअल में दी हुई है शुरुआत में ही. जैसे लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम लिटिल कन्वर्सेशन, इसके अंदर हम सेशन के शुरुआत में ही एक प्री असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, जिससे कि असेसमेंट होगा कि बच्चों में क्या कमी है. तीसरी क्लास तक, यानी पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा तक बच्चों ने अंग्रेजी सीखी है, उसमें किस तरह की उनमें कमियां हैं, उसको हम असेस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. तो एक ये छोटी सी एक्टिविटी है. पहले यस और नो इंग्लिश में बोलना है, यानी कि हम आपसे कुछ ऐसे फैमिलियर क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि आप यस और नो में बताएंगे. तो गोपाल जी, इज द डोर ओपन? यस सर. गुड. Sarita ma'am,
Are the books on the table? Yes, the books are on the table. Is Gopal standing? Sandeep ji? No, sir. No. Is Sandeep writing? No, sir. No, sir. He is not writing. Is not writing. Are we walking? क्या हम चल रहे हैं? No, sir. अब ये जो इस तरह का असेसमेंट हम टीचिंग लर्निंग के सहारे सपोर्ट से ही करते हैं कि बच्चों ने एक लिसनिंग स्किल डेवलप की है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और यदि बच्चे अच्छी तरह से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो रिस्पॉन्स भी ठीक देंगे। इसी तरह से एक एक्टिविटी है कि कैलेंडर आपने देखा होगा। Yes, sir. Yes. कैलेंडर में क्या लिखा होता है? मंथ्स नेम। तो आप मंथ्स नेम बताएंगे। पहला मंथ नेम कौन सा होता है? जनवरी। जनवरी। अगर बच्चा जनवरी भी बोलता है तो इसका अर्थ यह है कि इस बच्चे ने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। जनवरी उसको हम बुलवा सकते हैं। सेकंड मंथ कौन सा होता है? फरवरी। थर्ड मंथ मार्च। फोर्थ मंथ अप्रैल। अप्रैल। फिफ्थ मंथ May. सिक्स्थ मंथ June, sir. July. अगस्त। September. गुड। October. November. दिसंबर। वेल डन। तो जब बच्चे यदि इस तरह की बातों को अच्छी तरह बताते हैं तो हमें बच्चों को एनकरेजमेंट करना चाहिए, क्लैपिंग करानी चाहिए, और उसमें असेसमेंट होता है। यदि कोई बच्चा गलत भी बताता है तो उसको हम वहीं पर मॉडिफाई करा सकते हैं। दूसरा बच्चा भी कहेगा नहीं अगस्त नहीं होता, सितंबर होता है, तो वो पीयर ग्रुप में सीखते हैं, ग्रुप वर्क में सीखते हैं। इसी तरह से मैं आपको ये वर्ड्स बोलता हूँ जो कि हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पर ले जाएगा, हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ ले जाएगा। आप अपने पेन या पेंसिल निकाल लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए 9 डंकी, काउंट, होम, अराउंड, jumped, number, looked, around, climbed, rock, foolish, name. When students are writing, a teacher should observe the process, because assessment for learning is a process oriented. और जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो टीचर उसी समय उसको रेक्टिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। फॉर एग्जांपल यदि रॉक बच्चे ने भी लिखा है, ROK लिखा है, तो उसको ROCK हम वहीं करा देते हैं। तो ये बच्चों पर इंडिविजुअल अटेंशन है, क्योंकि हम ये पुराना जो हमारा एक तरीका था कि हम पूरी कक्षा को एक तरह से ही समझाते थे। हम समझते थे कि सभी बच्चे एक तरह सीखेंगे तो एक ही इंस्ट्रक्शन देते थे, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन इज बीइंग पेड, सो इट्स रियली वेरी वैल्यूएबल प्रोसेस। और जब ये बच्चे कर लेते हैं तो असेसमेंट किया जाता है कि यदि स्टूडेंट्स इंग्लिश में ये वर्ड्स लिख लेते हैं या इंग्लिश में कंप्लीटली बोल देते हैं या इंग्लिश में रिस्पॉन्स दे देते हैं, उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, इट मीन्स दे आर लेवल 2 लर्नर्स, दे आर परफेक्ट। बट इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट, टू रीड, listen and speak in English language, or they partially learn, they are level 1 learners. Dear teachers, be careful. Don't label the students level 1, level 2. It should be written only in your diary. It should be confidential one. And students should be assessed in the ongoing process, and they should be made to learn. And this is really very innovative idea. While you are teaching, you are learning also. Dear teachers, जब आप पढ़ा रहे हैं तो ये इस तरह का सीख भी रहे हैं। तो this is really very good idea. You must assess the students through this pre-assessment test, and then we can go to the class 4 students for further learning process.
Evaluation means assessment of learning और summative assessment. मूल्यांकन का अर्थ है कि हम जो पूरा सिलेबस या आधा सिलेबस पढ़ाया है उसको टेस्ट के द्वारा या एग्जामिनेशन के द्वारा यदि बच्चों की परफॉर्मेंस को हम अचीवमेंट टेस्ट से लेते हैं तो वो समेटिव है और इसी को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहेंगे. जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इन which we form the learning situations. We form the situations for learning. The purpose of which is judging the quality of performance of children while learning is going on. This is difference between assessment for learning, assessment of learning. तो क्या आप समझ पाए कि assessment of learning क्या है? Yes. Assessment for learning क्या है? Assessment for learning में क्या चलता है? Teaching learning process. Formation of teaching learning situations. जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समेटिव असेसमेंट है, वो इकट्ठा टेस्ट लिया जाता है, एग्जामिनेशन लिया जाता है एंड दैट समटाइम्स बिकम सम स्केरी वन फॉर द स्टूडेंट्स. बच्चे डर जाते हैं इकट्ठा एग्जाम देने. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेटर. असेसमेंट फॉर लर्निंग इज रियली रिक्वायर्ड एट द प्राइमरी. वी हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी हाउ टू डेवलप स्टोरी टेलिंग विद a very constructive approach in which participatory mode of learning will be developed. हम देखते हैं कि My Book of English में एक स्टोरी है, Abu Ali counts his donkeys. This is lesson number 2, My Book of English for class 4, and this is a story Abu Ali counts his donkeys. इसका एक मेथड डेवलप किया है कि ये जो पेजेस हैं Abu Ali counts his donkeys 1, 2 और 3rd पार्शियल पेज, उसमें हम क्या करते हैं, फोटो कॉपी करा लेते हैं या बच्चों से ही राइटिंग करा लेते हैं पेपर्स पर. राइटिंग कराने के बाद हम स्ट्रिप्स में, लाइंस को स्ट्रिप्स में कट करते हैं. इस तरह से 14 लाइंस हम कट करके और ग्रुप फॉर्म करते हैं. सभी टीचर्स इस ट्रेनिंग में भी इस तरह करेंगे कि अपना ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, और इस तरह से उस ग्रुप में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ग्रुप्स. लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स को हम पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब आप स्टेप्स की रीडिंग करेंगे और कोऑपरेशन से, एक डिसिप्लिन से जो स्ट्रिप्स है उनको सीक्वेंस में लगाएंगे, क्योंकि मैंने जो स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूट की है ये जम्बल्ड फॉर्म में है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं है ये स्टोरी. नाउ लर्नर्स विल रीड दी स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स को बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर वो कोऑर्डिनेशन के द्वारा उसको सीक्वेंस में बनाएंगे. Group 1 will form sequence of sentences. Group 2 will form sequence of sentences. Yes, sir. Clear. Good. Now, one of the participant will make these steps, these sentences in sequence as far as possible. Yes. Have you made it in sequence? Yes, sir. Now, group number 1 will read the sentences in sequence. Yes, please read. I'll count my donkeys again, he said to himself, and this time they were 9. Just then Abu Ali saw his friend Musa walking along the road. Musa, he called, help me to count my donkeys. I keep losing one. When I stop to count, I find only 8. But when I get down looking for the 9, there he is again. Last. And the last one is, he's sitting on the first donkey, said Musa, and his name is Abu Ali. Very So good, that's very the good, next wonderful, good. In between, we must appreciate the learners so that they are encouraged to learn this language and they create love for learning the language. Now, group 2, please read sentence in sequence. The first क्रम में पढ़ेंगे. One day Abu Ali went to a fair and bought 9 donkeys. He rode home
one of them, and the other donkeys followed behind. After a while, Abu Ali said to himself, "Are all my donkeys here?" Just then he turned round to count them. And then so on. After a while, he counted his donkey again. He counted only 8. Once again, he jumped down from his donkey. He looked behind the rocks and the trees, but there was no donkey to be seen. All right, good, well done. Now, these two groups, they will come together. क्योंकि जो ये एक ग्रुप ने जो सीक्वेंस पढ़ा है वो डिफरेंट है और दूसरे ग्रुप ने पढ़ा है वो आइसोलेटेड है, डिफरेंट है. अभी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए ग्रुप 1 हो सकता है कि ये जो पार्ट है ग्रुप 1 के पास ये लास्ट में हो और ग्रुप 2 के पास पहले हो, शुरुआत हो. तो अब ये कोऑर्डिनेशन करेंगे आपस में और तय करेंगे कि कौन सा पार्ट पहले आएगा कौन सा पार्ट बाद में आएगा. नाउ यू हैव नाउ डिस्कस्ड all the steps and now I think you have made the whole story in sequence. Now it is your turn to speak, to tell the story in sequence so that I will assess whether you have done this task correctly or not, because I have book in my hand and I will find that you have done this task correctly or not correctly. Yes, please speak, start speaking. One day, Abu Ali went to the fair and bought 9 donkeys. He rode on one of them. The other donkeys followed behind. After a while, Abu Ali said to himself, "Are all my donkeys here?" Just then, he turned round to count them. Good. It is correct. Next participant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, where is number 9? Abu Ali cried. He jumped down from the donkey. He looked around. He looked behind the rocks and the trees, but there was no donkey to be seen. Good. Wonderful. Good. Excellent. "I'll count them again," Abu said. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, he must have come back. Good. So Abu Ali climbed back onto the donkey and rode away. After a while, he counted his donkey again. He counted only 8. Once again, he jumped down from his donkey. He looked behind the rock and the trees, but there was no donkey to be seen. Yes, next. I'll count my donkeys again, he said to himself, and this time they were 9. Just then, Abu Ali saw his friend Musa walking along the road. "Musa," he called, "help me to count my donkeys. I keep losing one. When I stop to count, I find only 8. But when I get down looking for the 9, there he is again." Well, I can see 10 donkeys, Abu Ali, laughed Musa. Good. 10? How can you see 10? Asked Abu Ali. You are sitting on one and there are 8 donkeys behind you, said Musa. "Of course," said Abu Ali. "Oh, I am very foolish. But where is the 10th donkey?" "He is sitting on the first donkey," said Musa. "And his name is Abu Ali. Wonderful clapping. Good. So this is really very good skills. Listening, speaking, reading, intermixed together. Well done, participants. It is really very good, amusing, and an activity that is full of pleasure, happiness. We learn through joy, and learning with joy is really real enhancement of learning process. और इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने देखा कि हमने 3 स्किल्स को इंटीग्रेट किया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग. और यदि हम राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं स्टोरी टेलिंग के सहारे, तो एक और बढ़िया एक्टिविटी
आप देखते हैं कि इस क्लास 4 में यही लेसन अबू अली काउंट्स डंकी में राइटिंग स्किल डेवलप कराने का एक बहुत अच्छा मेथड दिया है, जिसमें कि यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो विद द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। ये गाइडेड कंपोजिशन है। इस स्टोरी के जो फ्रेमवर्क है उसको, जो इनकम्प्लीट है उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए फॉक्स लिव्ड नियर ग्रेप फार्म। आप देखते हैं पिक्चर में बच्चा फॉक्स को समझ जाएगा, ये फॉक्स है, ग्रेप्स लगे हुए हैं। उसके बाद उसको फिल अप करना है। तो ये जो हिंट दिए हुए हैं, he thought that he could eat some grapes. He was angry. But he could not reach it. He jumped to pick up. He felt hungry one day. तो इसको कंप्लीट करेंगे। Be ready? Yes. Are you ready for that? Ready? Yes, sir. I think you can do it now by making it in sequence, and you will write this. The fox lived near a grape farm. पेंसिल से लर्नर्स जो है वो सीक्वेंस में बना लेंगे कि पहला जो आएगा वो क्या आएगा? He felt hungry one He day. felt hungry one day. Yes, sir. क्योंकि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, he is looking hungry, और hungry है तो ये angry भी है, यानी कि भूखा है तो angry भी है। So he walked into the farm. सेकंड में क्या आएगा सुदर्शन जी? He thought that he could eat some grapes. Yes. Similarly, we can number the sequence और नंबर इसको लगा के और फिर राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे। तो इस तरह से स्टोरी राइटिंग में ये स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्पफुल है, और इसमें हम चारों स्किल्स का इंटीग्रेशन करते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इज इंटीग्रेटेड, and assessment for learning is also going on. So this is really wonderful teaching learning process in which students are assessed, learners are assessed with the help of ongoing activities. Teachers, सवाल ये उठता है कि पढ़ाने के बाद हम बच्चे को रिपोर्टिंग कैसे करें, फीडबैक कैसे प्राप्त करें, क्योंकि रिपोर्टिंग मिलेगी तो उसके बाद ही हम फीडबैक देंगे। तो इसके लिए एक सैंपल रिपोर्ट कार्ड बनाया जा सकता है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, name student Anita, her roll number is 23, class 4, subject English। हमने स्टोरी टेलिंग और स्टोरी राइटिंग का जो एक्टिविटी के द्वारा एक प्रदर्शन किया और स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस किया, उसको रिपोर्ट कार्ड में किस तरह से उतारा जाता है, क्योंकि हमारा असेसमेंट क्वालिटेटिव होना चाहिए, नॉट क्वांटिटेटिव। केवल अंकों के आधार पर नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर हम ये असेसमेंट करें कि बच्चे बोलना, लिखना, सुनना या लैंग्वेज में फ्लुएंसी किस तरह करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लिसनिंग स्किल में, द चाइल्ड फॉलोज सिंपल ओरल इंस्ट्रक्शंस। गुड मॉर्निंग कहने के बाद बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया गुड मॉर्निंग, और जैसे ही इंस्ट्रक्शन दी उसी के अनुसार बच्चे ने कार्य किया है, तो वो डिफरेंशिएट्स मोस्ट ऑफ साउंड्स, बट समटाइम्स स्टूडेंट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट साउंड बिटवीन से, श, जे। It means grade is provided B. Speaking skill में pronounces sound of English with ease, आसानी से वो pronunciation करता है और narrate करता है, retelling करता है स्टोरी को, और इसी तरह से confidently poem को recitation करता है या स्टोरी अच्छी तरह बताता है, तो उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप हुआ है। इसी तरह रीडिंग में ग्रास्प किया आपने आइडिया, सीक्वेंस में लगाए सेंटेंसेस, तो इसका इट मीन्स यू हैव ड्रॉन कंक्लूजन ऑल्सो। राइटिंग स्किल में आपने स्टोरी राइटिंग में मैकेनिक्स के द्वारा जान के अच्छी तरह से राइटिंग किया है और अपने आइडियाज को कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज करके उसको बनाया है, और ओवरऑल प्रोफिशिएंसी भी होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का। उसके अंदर ही कॉन्फिडेंटली लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, और रीडिंग पिक्चर किया है स्टोरी में। और इसी तरह से the student tries to balance eye-hand coordination wherever necessary. So this is the report card that must be filled qualitatively. फिर हम आते हैं असेसमेंट ट्रैकर, जो कि आप देखते हैं कि ये जो लिटिल कन्वर्सेशन है क्लास 4, क्लास 3 में भी हमने असेसमेंट ट्रैकर लिया है और उसको आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में अच्छी तरह से असेसमेंट फॉर लर्निंग में डेवलप किया है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे
और समझेंगे और करेंगे। और असेसमेंट ट्रैकर क्लास 4 के लिए लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम टीचर मैनुअल में उसमें वही है कि लेसन का ऑब्जेक्टिव हम तय करें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद उसको हम उसमें अच्छी तरह से भरें, जो कि लास्ट पेज पर दिखाई देता है। उसमें यूनिट 1 में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसमें बच्चे ने कितना स्किल एक्वायर्ड किया है, उस एक्वायर्ड स्किल को हमने उसमें फिलअप करना है। तो टीचर्स ध्यान दें कि माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लासेस 3, 4, 5 में भी लेसन्स के ऑब्जेक्टिव्स आप तय करेंगे और उसके बाद उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद इसी तरह का एक ट्रैकर बनाकर बच्चों का रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसी फीडबैक के आधार पर हम दोबारा से परिवर्तन करेंगे और इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाएगा, एक स्पाइरल फॉर्म ऑफ लर्निंग हो जाएगा, जिससे कि हम बच्चों का असेसमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अब आपने क्या जाना कि असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रक्रिया संबंधी है, जबकि इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। Are you sure you will do? Thank you very much.